You have come here for a purpose. You have come here for an answer. And when the Lord answers, He answers with fire. Amen. English is okay? And when the Lord answers, He answers with fire. Hallelujah. There is so much that is leaving you all right now. Amen. There is so much of affliction that is leaving you all right Amen. now. Amen. There is so much of deliverance coming to you right now. Hallelujah. There is a blessing of finances that is coming into your Amen. life Amen. right now. Amen. Even as we are prophesying over your life. The Lord knows the end from the beginning. Amen. There are some people who you thought will be of your support, but they have not been of your support. And I believe it is good that they are not of your support. Amen. Because your support is the Holy Spirit. Amen. Your support is a God who has created you in His image and likeness. Hallelujah. And so cling to the Lord. Hallelujah. Miracles are happening. Amen. Doors are opening. Jesus. As we prophesy over your life. Amen. You are going to see the faithfulness of the Lord. Amen. Do not look at what the Satan is showing you. Do not look at what the enemy is showing you. Hallelujah. The Lord is healing you. Amen. Even this child, the child goes through sometimes sleepless night, crying horribly. Sometimes some pain in the stomach. Right now the healing is flowing. Out. Healing in the mighty name. Amen. Healing. Open your hands and allow the presence of God to touch you. The glory of the Lord is resting upon you and your family and your child. This gift God has given you. It has not been easy. You know what you went through and what happened in your life. Does it make sense to you, whatever the Lord is speaking? And as you say yes, and as you open your life with that openness that you stand as a family here, may the glory of the Lord rest upon you and your family. And understand, you have begun this year 2026. When the prophets are speaking into your life, I would encourage you, listen to these words very clearly. I would encourage you to re-enter 2026 with faith, not fear. Re-enter 2026 with faith and not with fear. Stop looking back. What has happened is not your problem. What has to happen, what God has in store for you, is going to be your problem, because you need to look ahead in life. Enough is enough of looking down, looking around, being distracted. When I'm saying, I'm not saying physically, I'm talking in various dimensions of your life. Where you were taken for granted. Where you went through useless, uncalled battles and useless pains. And today as a family, as you stand before the prophets, they are speaking truth into your life. And the Bible says, the truth will set you free. And the truth that we want to tell you is, stop looking at what you can see with your physical eyes. Start operating in faith. You know very well what I am pointing out at. Certain dimensions of your life. Certain dimensions of your life system. These are areas which you need to look about. Pick up your mat and move forward. With the hand of God. With the principles of the Word of God. With the voice of God. If it was not for the Lord, things would have been worse. You know very well. Things would have been out of control. God took care of you. That's why you crossed over in 2026. Otherwise, it would not be possible. You know as a family. And when God has shown that faithfulness in your life, what I would encourage you is, He has a plan for you. That's why He made you as a family to cross over in the year 2026. So now be joyful. No more tears. No more sorrow. No more pain. Only obedience, holiness, focus on Jesus, and move towards your destiny which God has in store for you. There are certain pains that happen in your life in this area and in this area. Those are leaving in the name of Jesus. And the victory and the success is coming. Some dreadful dreams that come into your life and you fear for your future, that is leaving in Jesus' name. And the healing is coming over. This is your son or daughter? The Lord is bringing healing over her in the name of Jesus. Have you come here for the first time? Second time? Whatever the Lord spoke to you, did it make sense? It made.
Amen. And you need to offer your life completely at the feet of the Lord and allow what God wants to do into you, because He has a plan for a future full of hope. This should go in the recesses of your mind. And when you understand that and move forward, there's no looking back. Hallelujah. Hold your hand as a family. Hold, all of you. Try to hold His. And also we pray for a blessing. We pray. We declare the blessing upon this family and the favor of God to locate, and that they may look forward in this year 2026 with your blessing. Amen, amen, amen. Go back, sister. शब्दों में कुछ नया कर, कुछ नया कर, कुछ नया करेंगे जीवन में प्रभु, नया कर इनके जीवन में प्रभु, नया कर इनके जीवन में प्रभु। कार्य प्रभु को कुछ नया कर इनके जीवन में, होने दे आज, नया कर इनके जीवन में, नया करेंगे जीवन में प्रभु। शब बरकत एक तो ये आगे आइए भाई बहन, आगे आइए जल्दी। आप दो लोग आगे आइए, आप दो लोग आगे आइए, आगे आइए। Both of you, come quickly. You come quickly. We can do it faster. We need to prophesy faster in the name of stand. फैमिली है, हाथ पकड़ो। कोई भी सुनिए, शुगर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तंदुरुस्ती आपके जीवन में आने वाली है और छुटकारा आपके जीवन में आने वाला है। अगर ऐसे सोच आप रखते हो, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। प्रभु आपके जीवन पर बात करता है। रात के कोई तकलीफ में प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु बात कर रहा है। सांस कम होती है, बहुत बार तकलीफ होती है, पेट में कोई खाना जमता नहीं है। प्रभु छुटकारा दे रहा है, मेरा प्रभु छुटकारा दे रहा है। इंग्लिश हिंदी नई दिशा, नया उजाला, नया आशीर्वाद मेरा प्रभु आप पे ला रहा है। जो नया चीज आप करने की भूखे रखे हो, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, आप कुछ ट्राई कर रहे हो, वो होने वाला है ईश्वर के नाम से। शरीर में दाहिने साइड में जो दर्द है, वो छुटकारा प्रभु आपके जीवन में ले रहे हैं। वचन में लिखा है, कौवे ने आके भविष्यवक्ता को खाना दिया, रोटी दिया। डरना नहीं है। यीशु परमेश्वर को पता है कैसे आपके घर में खाना देगा, और कौवे आके आपके घर में आशीर्वाद देगा। यानी द सुपरनैचुरल ब्लेसिंग प्रोविजन। आप इतने सोचते घर के बारे में, क्या करना है, कैसे दिन गुजरेंगे, दिन गुजरने वाले, दिन आशीर्वाद होने वाले, आपके दिन आशीर्वाद होने वाले। और हमारा कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये उम्र कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। कोई आप में से कोई जल्दी मरने वाला, आपका जो डर है ना मौत का, कुछ नहीं है, कुछ होने वाला है। बहुत कुछ आशीर्वाद आपके। जो भी भविष्यवक्ता ने बताया
और जो पवित्र आत्मा ने बताया, क्या ये सच है? क्या यहाँ पर आप पहली बार आए? हालेलुया! प्रभु ने बताया, प्रभु ने बात किया, होने दो आपके जीवन में। बोलो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होने दे तेरे इच्छा के अनुसार, और आशीर्वाद और बरकत के लिए इस साल के लिए मैं और मेरा परिवार तैयार है। शब बरकत रोना बंद, हंसना शुरू। हालेलुया! आप जाइए शब पर, आप लोग आगे आइए, आगे आगे बोला पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी चीजें आपके राज्य के नहीं है, जो आते हैं इस वक्त मैं बोलता हूं उसे निकल जा। मेरे जीवन में होने वाला है बरकत, आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा और आजादी। शब बरकत। दोनों को मैं बोलना चाहता हूं, आप खोलिए और सुनिए। प्रभु ने उसको बोला अपनी चटाई उठाओ और आगे बढ़ो। क्या बोला? चटाई उठाओ और pick up your mat and move forward. That is what the Lord is saying. Forget what has happened. Pick up your mat, move forward. God is doing it for you. Hallelujah. Everybody for the first time. क्या यहाँ पर कहिए, क्या प्रभु आपसे बात किया? जो भी भविष्यवक्ता ने बोला, क्या ये सच है? क्या बोले? हालेलुया! आपको जो प्रभु ने बताया, क्या ये सच है? हालेलुया! अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। बोला आपने बोला इंडीड, और जरूर ये है प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु का बरकत आपके जीवन पर इस वक्त प्रभु ला रहा है। शब बरकत होने दे touch. Thank you, Jesus. आपके जीवन से बहुत दुख निकल उठिए, खड़े हो जाइए यीशु के नाम से। बहुत नया प्रभु कर। मैं देखती हूँ आपके जीवन में किसी ने तो बहुत दुख दिया, कोई तो इंसान है जिसने आपको बहुत दुख दिया और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आपका बेटा है, पता नहीं बहुत दुख दिया है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपका बहुत आपके दिल के करीब है। उस वक्त जैसे आप यहाँ पे हैं, प्रभु उसको छू रहा है। कुछ है क्या? कोई ऐसा कुछ है? कौन है? आप बोलना चाहते हैं? इस वक्त धन्यवाद प्रभु। खुशी से जाइए, अभी से हंसना, स्माइल करना और आगे बढ़ना। आमीन। प्रभु ने इतना बात किया, इतना डिटेल आपके जीवन के बारे में बताया। आप पहले बार आए हो, क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है आगे का जिंदगी कितना अच्छा रहने वाला है। हालेलुया! जाइए यीशु के नाम तालियां बजाकर जाइए। For the year of supernatural provision, 2026, when your glory is manifesting, will continue to manifest through every day, every hour, every second, every minute, every week, every month, every quarter, to the end of the year. We are going to see your faithfulness, oh Lord. Shama Barakatara. Brother, come in the front. Brother, you in the brown t-shirt, come ahead. Shama Barakatara. You come ahead. Shama Barakatara. Come ahead. Shama English. Hindi only ita. It will speak. Shama Barakatara. Hey Barakatara. The Lord knows the end from the beginning. Zana Deo Tuka Sutkara Dita. The Lord knows everything. प्रभु सब जानता है क्या आपके जीवन में करना चाहता है और क्या कर सकता है, क्या उसने रखा है आपके जीवन के लिए. He understands
He knows what He has in store for you, what He has kept for you, what He has lined up for you. So open your life to the Lord. अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु के सामने खोलिए, क्योंकि जिंदा खुदा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है. The Lord wants to bring blessing, 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 blessing in the name of Jesus. जेसु तुझे आशीर्वाद, blessing, blessing. He's putting Shabba Barakatara Baratar Baratarba. Evanariana Barakataria Evan तुझ्या दुःख आणि कष्टांची वेळ जेसूचा, and He will lift you up from that pain and sorrow and anguish. He will lift you up. आपको उस दर्द से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस कठिनाई से प्रभु आपको उतारा है. शब बरकतर बरतर बरतर बरतर. You have come here for a solution. You're looking for a solution. कुछ तो solution आप सोच रहे हैं या आप उसके बारे में रुके हुए हैं. प्रभु वो solution आपके जीवन में first quarter of this year you will experience that solution in your life. First quarter ये साल के पहले first quarter में आप वो solution आपके जीवन में महसूस करेंगे. हे बाबा कतरिया तेजा जीवितान के solution will come. शब बरकतर बरतर बरतर बा. हे बरनारी oh fire, 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 fire. Your glory, your glory, your glory, your glory. Hey बरनारी Ratik, Neem, Soma, Yana. You feel, you see dreams, fearful dreams, and worry of the future. आगे के बारे में आप बहुत चिंतित होते हैं, डरावने सपने आते हैं. Jesus is setting you free. प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है और आशीष दे रहा है. He's setting you free in the name of Jesus. Hey बाबा रखेंगे बरनारी hey बरनारी come here, come here, come here, come here, come here. शरा बरकतर बरतर बरतर. Hey बरनारी hey बरनारी. God has created you, knows how to take care of you. Right now, even as we are speaking to you, the body is already afflicted by the sorrow is leaving you. The struggle that you have for more than 25 years, financial problem that you have for more than 25 years, house problem is leaving right now. The Lord is blessing your house. You will receive a blessing in your life. Some pain in your body is leaving. Some curses are leaving. You will receive the touch of God. The anointing breaks the yoke. Amen. 25 साल से जो ज्यादा तकलीफ आपके जीवन में रही है वो प्रभु छुटकारा दे रहा है. कंपनी is limited but the Lord is limitless. Hallelujah, hallelujah. The Lord is bringing you freedom and deliverance and blessing in the name of Jesus. समझा लो. Sure, it doesn't make sense. Whatever the Lord spoke, जो भी प्रभु ने negative thoughts are there, fearful things are there. Whatever the prophet spoke through prayer, through prophecy, जो भी प्रभु ने उसके भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया, क्या वो आप समझे? और शरा बरकतर पहले वक्ता आएगा यहाँ फर्स्ट टाइम ना ईयर शरा बरकतर शरदार ईयर बरकतर हे बरदारी blessing in the name of Jesus. शरा बरकतर मांगने पर जेसु मुझे आशीर्वाद आनी है. शरा बरकतर pray for Jesus to come into your life. शरा बरकतर हे बरदारी amen. Hallelujah. Be joyful, be happy. God loves you. God takes care of you. Go. Shara barakat. Hey baranari. आप बैठिए. शरा बरकत. अपने हाथों को खोलिए. शरा बरकत. The Lord has highlighted you with the same quote. इंग्लिश समझते, हिंदी समझते. शरा बरकत. प्रभु ने आपको चुना है. ये तीनों लोग आप सेम कोट डाल रहे. कोट की वजह से आपको नहीं बुलाया गया है. ठंडी जो लग रही है उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि प्रभु आप तीनों पर कुछ एक नई योजना और नया बरकत और नया आशीर्वाद लाने वाला है. हालेलुया. 2026 में कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है. यीशु के नाम. क्या आप विश्वास करती हो? क्या छोटी आप विश्वास करती हो? हालेलुया. बहुत कड़क से विश्वास करती है छोटी. हालेलुया. 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 हो रहा बरकत. कभी कुछ
कुछ एलर्जी जैसा होता है, अब उनकी ये रहेगी कुछ एलर्जी जो होती है इनके जीवन में, शरीर में। प्रभु छुटकारा और आशीर्वाद आपके जीवन में दे रहा है। शब बरकत रहा। ये कलर, जो कलर प्रभु ने आपको दिया है, कोट का कलर, आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में, आपके फ्यूचर में प्रभु कलर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? इसी के लिए स्पेशली द लॉर्ड कॉल्ड यू अहेड। बहुत प्रभु ने आपको आगे बुलाया क्योंकि कुछ तो योजना आपके जीवन में करना चाहता है। शब बरकत जाइए, आगे जाइए, आगे तीनों बेटी आपकी है। वो नहीं पूछ रहे। तीनों आपकी बेटी, तीनों आपकी लड़की है ना? तीनों लड़कियां, अगर आपने कभी सोचा है कि 3 लड़कियां हुई, मुझे लड़का चाहिए, मैं खाली बोल रही हूँ, अगर आपने कभी सोचा है शायद लड़का होना चाहिए तीनों बेटे, तो तीनों बेटी 3 अलग अलग दिशा से आपके घर में आशीर्वाद है। अगर आपने कभी सोचा शायद बेटा होगा, ये 3 लड़की 3 अलग दिशा से आपके घर में आशीर्वाद है, आपके घर, आपके जोड़ी में आशीर्वाद है। इतने आगे बढ़ेंगे, फिर आप अपने Sister, you come again. Shab barakat raba. Hey Shab barakat raba. English Hindi. Shab barakat raba. अपने हाथों को खोलिए और प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। शब बरकत रaba. हे बरकत सूखी हड्डियों में वो जान ला रहा है। आप जानते हैं क्या भविष्यवक्ता बता रहा है? सूखी हड्डियां जो आपके जीवन में, परिवार में, और जो चीजें जो अटकी पड़ी हुई है 2.5 साल से और कई वक्त से जो हिल नहीं रही है, वैसे सूखी हड्डियों में जिंदा खुदा फूंक रहा है, उसकी आत्मा जान ला रहा है और आपके जीवन में बढ़ोतरी और फलदायी आशीर्वाद आ रहा है। चीजें आप करते हो, बहुत से चीजें में आप अपना योगदान करते हो, पर फलदायक नहीं होते हो। आज प्रभु की आत्मा आपके जीवन पर बरस रही है, फलदायक की आत्मा और जिंदा आशीर्वाद की आत्मा आपके जीवन पर बरस रही है, ताकि सूखी हड्डियां जो सूखी पड़ी है, जो चीज में जान नहीं है, जिस चीजों में मूवमेंट नहीं है, उस पर मूवमेंट आ रहा है और आपके जीवन में आशीष, आशीर्वाद और बरकत प्रभु ला रहा है। डरावनी आत्माओं से, डरावने सपनों से प्रभु आपको इस वक्त आजादी दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। हाथों के उंगलियों में कभी कभी सुन महसूस होता है, दर्द होता है, ऐसे दर्द और ऐसे सुन आत्माओं से आपको छुटकारा और आशीष प्रभु इस वक्त दे रहा है। करीब 6 साल से ज्यादा हो गए हैं। कोई गैर समझ कंटिन्यूसली होता है परिवार में, लोगों में गैर समझ, कंफ्यूजन होता है और ये चलते जाता है और ऐसे चीजों से आप थक गए हो। प्रभु इस वक्त आपको आजादी और छुटकारा दे रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए बोल रहा है और अपना विश्वास बढ़ा के, अपना चढ़ाई लेके आगे बढ़िए। Pick up your mat and walk in Jesus' name.
Amen. जो गंदी आत्मा घर में है, जो घर में शांति नहीं ला Amen. रही है, Amen. वो सब निकले। Hallelujah. आपके बदन से भी कुछ गर्म निकल रहा है, छुटकारा दे रहा है। Amen. यीशु के घर में आया, वो खाली हाथ नहीं आया। Hallelujah. यीशु के घर में आया, Jesus. आशीर्वाद लेके Amen. का बालीपन में निकल रहा है, वो रहा आपने बहुत से प्लान किए, बहुत से आपने सोच के रखा कि ऐसा 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 ये टाइम पे करना है, लेकिन आपके सोचने के अनुसार वो नहीं हुआ है। और कभी कभी तो बहुत से उल्टे चीज भी हो गए जो आपने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे ऐसे बंधन आज आपके जीवन से निकल गए, ऐसे ऐसे बंधन आज आपके जीवन से टूट गए। Hallelujah. आजादी हो रही है। Amen. आप बहुत से जगह पे गए, लेकिन Amen. वो आजादी जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिली। आज हम यहाँ पे आए हैं, Amen. बहुत बड़ी आजादी मिली। Amen. Amen. उसी के नाम से Amen. और आप फर्क अपने जीवन में देखोगे, Amen. फर्क अपने आपके स्वास्थ्य में देखोगे, Amen. फर्क आपके पैसे पे देखोगे, Amen. फर्क अपने परिवार में देखोगे। Amen. फिर आप आशा करते Amen. हैं, Amen. 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 बोलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ जो कार्य तूने इस वक्त मेरे जीवन में शुरुआत किए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि वो पूरे हो जाएंगे मेरे जीवन में। धन्यवाद प्रभु जो तूने मुझे आशीषित किया, मुझसे बात किया, और मुझे पता है जब तू मेरे जीवन में बात करता है, मेरे जीवन में पूरे कार्य जो आपके अनुसार है वो पूरे होंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे वापस राजा प्रभु यीशु बोलकर मेरे जीवन में अपनाती हूँ। होने दे मेरे जीवन में आजादी, आशीर्वाद, छुटकारा, जैसे मैं सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित करती हूँ। जब आप आत्मा के प्रभाव में घिरे, यहाँ पर सुनिए, जब आप आत्मा के प्रभाव में यहाँ पर घिरे, आपके बदन से जकड़ और जंजीरें टूटे और आपने एक प्रकाश महसूस किया, हल्कापन आपके शरीर में आप महसूस कर रहे हैं। क्या ये सच है? जो भी प्रभु ने भविष्यवक्ता से बात किया, क्या ये सच है? क्या यहाँ पर आप पहली बार आए या पहली बार गए? पहली बार आए और प्रभु ने आपसे बात किया, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु ने आपको आजादी दिया, प्रभु ने आपके बंधन तोड़े, प्रभु ने आपके जीवन में कार्य शुरुआत की है। इसका मतलब है प्रभु पर और विश्वास बढ़ाना, प्रभु पर ध्यान देना और प्रभु का पीछा कभी नहीं छोड़ना। समझिए, समझिए। बोला मेरा कदर, अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाइए और प्रभु की स्तुति करिए। जाइए शब्द इंग्लिश, हिंदी, हिंदी वर्ड और हिंदी। अपने हाथों को खोलिए, अपने हाथों को खोलिए और होने दो उनके जीवन में आशीर्वाद, शबा, छुटकारा, छुटकारा। हे बाबा, जो भी आपको पीछे खींचना चाहता है, देखिए, जो भी आपको पीछे खींचना चाहता है उसका ताकत टूट रहा है और आप आगे की ओर बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपको पता है गए साल से तकलीफ बढ़ते हुए लग रही है, पर जो दिखता है वो नहीं दिखता है। किंगडम में, प्रभु के राज्य में जो दिखता है वो जरूरी नहीं है। विश्वास से आगे बढ़ो, आपका आशीर्वाद इस साल में रेडी है। आप आगे बढ़ो और बिना सोचे समझे सब कुछ प्रभु संभालेगा। अपना विश्वास बढ़ा और प्रभु आपको जानता है। 13 साल की उम्र में से लेके 15.5 साल की उम्र में तकलीफ से जब आप गुजर रहे थे, प्रभु था वहां पर। क्या आप जानते हो? तभी आपने आपको प्रभु ने संभाला, तो आज भी प्रभु आपको संभालेगा। कभी कभी सांस फूलती है, समझिए, सांस फूलती है और अस्थमा जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि कम सांस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु का छुटकारा और डिलीवरेंस आपके जीवन पर आ रहा है। कुछ तो प्लान या प्रोजेक्ट या कुछ तो चीज में आपका दिलचस्पी है। You have an interest on something that you need to do. God will bless you to do that in the year 2026.
There is an increase coming in your life. Not only I would say increase about your finances, but I see increase in life. Amen. An extension of life. The health also, whatever, I do not know what is the health. Amen. But even when it comes to your health, the Amen. Lord is reviving. Amen. प्रभु आपको ताकतवर बना रहा है Amen. और you will be more energetic, you will be more stronger. Amen. प्रभु इस वक्त आपके घराने में भी आशीर्वाद डाल रहा है, बहुत सी शांति, बहुत सी खुशी आपके घर में आ रहा है। The Lord highlights, प्रभु मुझे आपका वॉच दिखाता है and you are very fond of watch. आपको वॉच का पता नहीं शौक है कि क्या, प्रभु ये वॉच दिखा रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भविष्यवाणी कहना चाहती हूँ कि आपका जो टाइम है वो बदल रहा है। वो जो 2025 में हुआ था वो 2026 में और भी क्लैरिटी में बोली, जो कचरा आपके जीवन में 2025 में था वो 2026 में नहीं आने वाला। जो भी तकलीफ, बीमारी, घर में परेशानी, पैसे का ये वो जो भी शैतान की योजना थी 2025 में, वो सब कचरा जो था वो 2025 में है, वो 2026 में नहीं आने वाला। 2026 में नए दरवाजे आपके जीवन में खुलने वाला है। यहाँ पर पहली बार आए हो, जो भी प्रभु ने बात की है भविष्यवक्ता के द्वारा, क्या ये सच है? मैं अभी पहली बार आए हो, प्रभु ने बात की आपसे। मैं जस्ट अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए। हम पूछते हैं क्योंकि प्रभु काम करने शुरुआत किया है आपके जीवन में। एक प्रोसेस होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है जो एक्टिवेट होता है। जब आप सही चाबी कबट पे डालते हो तभी कबट खुलता है, मास्टर की जो बोलते हैं। और प्रभु ने आज वो सही चाबी अप्लाई की है आपके जीवन में, काम धंधे में, हेल्थ में। तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ते रहो, खाली आज्ञाकारी जीवन पवित्रता में रहो। हालेलुया। बोलिए, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में होने दे आशीर्वाद, 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 छुटकारा, आजादी होने दे मेरे जीवन में, बरकत। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरे लहू से धो दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, जैसे मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर, हालेलुया। स्माइल कीजिए, हाई फाइव इन द नेम ऑफ जीसस, हाई फाइव इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्यार करता है। ये आंसू खाली नहीं जाएंगे। आमीन। 2026 में उसका फल आपके जीवन में आएगा। जाइए भाई लोग।